that always inspire and guide us. It's rightly said. Education is not the feeling of a pain, but lightning of a fire. We now respectfully invite Dr. Ramesh Dutt to kindly address the gathering and share his valuable thoughts with us. A huge round of applause for him. Thank you. Greetings. So, we are about to launch a new evening with lots of happenings here. But the big question that comes to everybody's mind, how it all began. It began with one-liner. You'll be surprised to know, one-liner? Just one-liner, yes. In a world that is shifting its places so quickly and so rapidly, I'm so happy to see that Jetlis sit together in the evening and talk a lot, starting Sanit, 8 year, and going through Ridhima, 15 year, and then the Bujur. We talk about the day's happening. So we were sitting once, and I dropped a one-liner. This one-liner was from Victor Hugo, the French philosopher, who wrote somewhere, "One who opens a school closes a prison." It's a very thoughtful and meaningful one-liner. One who opens a school closes a prison. And the basic idea is education is the key word. So 3 A's, they got together, Ashok, Anita and Ashish. They thought we should open the school. Okay. But at the same time, Ayush and Neha, they were also to support the whole system. Okay, we are also there to help you all. So who is going to take the responsibility? Putravadhu Kanika Jetli. So we asked her, are you ready? She said, yes, I'm ready to take the challenge. She hails from a very cultured family, father the manager, mother the esteemed teacher, so she didn't have any problem to start the day and started it immediately. The rest is history. Laurels, applauses, awards, lots of it within a span of 8 years. This is the hard work that is being done by Kanika Jetli, and the whole team is so enthusiastic, the teachers, non-teaching and everyone. So what I wanted to tell you was, this is the power of one-liner. Having spent 52 years in the world of higher education, when I look back towards my journey, I remember certain faces who spoke one line, just one line. I had the pleasure of meeting Dr. Abdul Kalam Sahab in Dehradun, had his signatures on his book, Wings of Fire. And his one-liner is, don't neglect the backbencher. So I'm not talking about the audience, but I'm talking about the classroom. Don't neglect the backbencher because the real talent might be there. Imagine. The great man speaks like this. Then I moved a bit further and we were surprised to see in 2012, Indian person who was almost unknown, Kailash Satyarthi, won national, not only national but international recognition. He was awarded Nobel Prize for Peace, Kailash Satyarthi. He saved the lives of 150,000 kids from bondage. So I met him once at a book fair, and his one-liner was, worst violence in this world is to crush and curb the dreams of a child. And my favorite, Padam Bhushan Ruskin Bond sir, I have been meeting him very regularly. His one-liner is, childhood is nothing but a season. Just mark the word. Childhood is a season, and let the child bloom like a flower. How beautifully he has said it. The man who has written 500 stories, is my pleasure that I meet him regularly. So I have so many one-liners in this illustrious journey which I have gone through over the years, but to pack up it all, because we are waiting for the happening to happen, Shakil Saab's favorite is Rumi. You know what Rumi said in one-liner? He said, a child is not a drop in the ocean. A child is not a drop in the ocean. He's an ocean in the drop. Very beautifully said.
And if you ask for my take, how do I see it? I will say, don't allow your child to be childish. Don't allow. Let him be childlike. There is a lot of differences. Having my contact with education all these years, though higher education, but I have always kept a very beautiful eye on these kids, whom I call living poems. I'm so happy to see first try Hegde-Nagar is doing what we actually wanted to do in the world of education. 3 parts of education: sports, cultural activities, and ultimately the studies. So parents are here, all that I have spoken today, because for a professor, that to a retired professor, it's very easy to speak for an hour or so, but when it is squeezed to 3 minutes, then it becomes a challenge. I think I have met my challenge very well. Thank you very much for being here, and we hope for a very beautiful on the wings of music, dance and melody. Thank you. Jai Hind. And of course, the anchors are doing a great job, because here you have experience and here you have adventure. Confluence of both will give you a beautiful evening. But before the day starts, before the evening starts, I will give them a fan. Thank you, and We are learning graphic design and sculpture, painter. ग्राफिक डिजाइन। ओके, अच्छा आप देखिए, एक छोटा सा वीडियो करें बच्चे शुरू। ये NGMA है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, और उसकी ओनर कैफे है। कैफे में हम लोग मौजूद हैं, और ये आपकी सामने जो है रेशमा जी हैं, ओनर हैं। लेकिन आर्टिस्टिक इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंक्लाइंड है कि हमें इनसे मिलना बड़ा खुशी हुई। तो कफ़ायत ये कि देखिए एक पूरी टीम हमें यहाँ पे नौजवानों की मिल गई। तो ये नौजवानों की जो टीम है, इनमें आप हैं, बताइए। यस, और पेन मैंने सबको दे दिया पक्का। एक बात और याद रखिए, पेन इज माइटियर देन। जब तक पेन चलेगा तलवार बनेगी, और जिस दिन पेन रुक गया, क्योंकि आप कभी देखिए कोई भी रेवोल्यूशन अगर हुई है, उससे पहले फिलोसफर्स ने जो बातें कही, उन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर वहाँ पे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो ना हो तो कोई रेवोल्यूशन यही रशियन रेवोल्यूशन। इसलिए पेन की अहमियत सबसे ज़्यादा हर युग में रहेगी, और इस कलम में मेरी ब्लेसिंग्स है। 40 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए तो मैं बड़ा सा बताइए कि नौजवानों के बीच में आकर तो मुझे कहते हैं कि वो पुराना दौर मिलता रहता हूँ, सॉन्ग हो जाए तो सॉन्ग में देखिए, जो जिसने ना सीखा हमने घरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हम, रोटी को नहीं पूजा हम। अब हम तो क्या सारी दुनिया से करती, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती, वो पे सच्चाई रहती, यहाँ दिल में सफाई रहती। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में भारत माता की। थैंक यू, प्लेजर। जने आएंगे। अब देखना ये है मैजिक कि क्या 10-12 पेन मेरे पास होंगे। मुझे हमारे जो प्रशंसक है वो भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात नहीं, रखिए ना। रोकना पता क्या है, ये जो कलम है इसकी सबसे खासियत क्या है कि पेन इज माइटियर है। तो और मैं पेन लेते समय मैं एक बात कहना चाहूँगी। जी, पिछले साल या उसके और भी पहले करीब 1-1.5 साल पहले मैं महफिल में आई थी, और आपने मुझे एक पेन दिया था। वो पेन मैंने अभी तक संभाल के रखा है, और मेरे पेन ये दूसरी पेन आ गई हाथ में। थैंक यू सो मच। मेरी खुशी है ये, मैंने कहा कि मैं यही कर सकता हूँ एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, और जो मेरे से हो पाता
आता है वो मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। और ये शौवी साहब जो है, अरे। शौवी साहब को मैं ये कलम दे रहा हूँ। और देखिए तो अगर आप गिन के देखेंगे तो यहाँ हम जो है 19 लोग मौजूद हैं और 12 पेन की बात हुई थी तो 7 लोग कहाँ से आए, क्योंकि ये जो अक्षय पात्र है ये किसी को कभी धोखा नहीं देता, मेरे साथ साथ चलता है। इससे आगे की महफिल को सुनने के लिए मैं तो तैयार हूँ, इससे कम कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एक बार रोटरी क्लब वालों ने फिल्म पे बोलने के लिए बुला लिया था, 70 मिनट के बाद भी वो कह रहे थे कि अगर चालू रखो तो कोई गलती क्योंकि वो दुनिया अलग है। मैं उस दुनिया को सिर्फ रेस्टोर करने की, री इन्वेंट करने की और वापस लाने की कोशिश करता हूँ, आप ही जैसे सुधी जन और गुणियों के जरिए। थैंक यू, धन्यवाद। दिसंबर आप जानते हैं कि हिंदी फिल्म के महान अभिनेता राज कपूर साहब की सेंटिनरी है। राज कपूर साहब की सेंटिनरी 14 दिसंबर 100 वर्ष के हो गए और ये पूरी टीम उनको याद करती है, हम उनको याद करते हैं। और मुझे तो उनके बारे में इतनी बातें कहनी है और कह चुका हूँ, क्योंकि ग्रेट 14 दिसंबर। थैंक यू, थैंक यू। यस गर्दिश में आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। You can watch rest of the things on my YouTube channel. Yes, thank you. आप इसको, आप इधर आइए, फोटो आपकी। अब कौन क्लिक करेगा? ये रह गई, बंद कर दीजिए। ये गाने रफ़ी साहब के हों और या किसी भी सिंगर के हों, उसमें जैसे मुकेश साहब कहते थे 10 गाने तो मुझे दो, मुझे उसमें एक दर्दीला गाना दे दो बस, वो मेरी चॉइस है। मैं बाकी 9 प्रोफेशनल अपना सिलसिला है, ठीक है। तो होता है दर्द वैसे भी दिल के ज़्यादा करीब होता है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस चलो सर। मुझे एक रफ़ी साहब का गीत बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ लेकिन अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कोई शाम का ख्याल आ गया। और अगर दर्द की बात करें, इससे ऊपर दर्द कहा जाएगा। बेनूर मेरी आंखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव मेरे, गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी की परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। ये खामोश जिंदगी जो गलियों में भटक रही है, इसकी वजह खुद भी हो सकती है। खाते हैं आज ठोकरी शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम, तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई राह
रास्ता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, yes, we will. We shall overcome. बहुत खूब. This is Children's Day, 14th November 2019, and all these kids with lots of wishes from all of us. दुआएं, दुआएं, दुआएं. जो बेस्ट गीत है वो कौन सा है? गुलजार साहब नंबर 1 उसके जज थे और सोनू निगम नंबर 30 पे थे। अब आप सोचिए क्या बनी होगी। और मेहनत करी और जब बन के सब कुछ तैयार हुआ तो क्या निकला उसमें से? उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे हो मन रे, तू काहे न गिरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे हो मन रे, तू काहे ना धीर धरे। 4 झटके खाने के बाद मन को यही कहना पड़ेगा, अब चुप हो जा, अब चुप हो जा। ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या, ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? साहिर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ गा रही हैं, क्या गा रही है?
आकर के रफी साहब को याद करना मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ कितने अच्छे ढंग से देखिए, कितनी अगर आप आगे चलते रहे तो ठीक है। Yes. Only thing that you have to do is to believe in our future and see the beauty of it all. मैं इन दिनों रफ़ी साहब को बहुत याद कर रहा हूँ, उनके गाने बहुत गा रहा हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब की पुणे से 31 जुलाई ऐसी ऐसी जगहों पर आकर के नए नए जगहें खोज लेता हूँ और इतना अच्छा लगता है जीना। ओ जिंदगी तू झूले और मैं तो गाने के लिए निकल रहा हूँ और आपका क्या ख्याल है वो आप सोचिए। ये भी दो चित्र संध्या 4 जनवरी 2026 और संजय जी के साथ मैं मौजूद हूँ। इतनी भीड़ हो गई है, मैं तो 10 बजे से घूम रहा हूँ तब इतनी भीड़ हो गई थी। और मुझे अच्छा लगता है, देखिए इनकी आर्टिस्ट्री कितनी कमाल की है। ये इनकी टीम है, इनके नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलकर काम करते हैं। मैं एक बार इनकी वर्कशॉप में भी गया था। मैं यहाँ आकर के देखिए ये सीरेनिटी आज के दौर में जो मिसिंग है वो ये है, साइलेंस, सोलेंस एंड सीरेनिटी। और ये जो बर्ड्स हैं दिल्ली में तो गायब हो चुकी हैं, बाकी देखिए, लेकिन ये तस्वीर मुझे खूबसूरत दिखाई दे रही है। तस्वीर क्या रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता। अच्छा, ये कहना कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। ये गाते भी बहुत अच्छा है, ये अप्रिशिएटर बहुत अच्छे हैं। इनसे मेरा ताल्लुक बहुत गहरा है, संजय जी से, और इनकी टीम से भी मैं यही कहता हूँ कि ये जो दौर खत्म हो रहा है ना, इसे बचा लो। ये जो मिटते जा रहे हैं इन्हें बचा लो। वो जो मैं कहा करता था कि पिछले दिन यूट्यूब पर अपने वीडियो में मैंने बोला वेयर रोमांस एंड गॉन, तो ये रोमांस बचाओ। यानी आपके दिल में अभी भी उस दौर के लिए मोहब्बत है। और मेरे को जब गूगल कहता है कि भाई रिव्यू करो, तो मैं बड़ी ईमानदारी से रिव्यू करता हूँ। 72 लाख व्यूज मेरे रिव्यूज पे आ गए एंड आई डोंट चार्ज एनी मनी। क्योंकि क्यों, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट, और गूगल के अलावा मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ। मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझको देखते हैं। अब ये वीडियो जो मैंने बनाया है आज का, वो 4 बजे अपने चैनल पे डाल दूंगा और ये सब उसमें मौजूद होंगे। ये नौजवान जिन्होंने अभी ये तस्वीर खींची, ये देखिए, ये 2 जनरेशन्स है। मैंने पढ़ाया कॉलेज में, 40 साल पढ़ाता रहा, 12 साल रिटायर हुए हो गए, और उम्र नहीं बताने का। आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यस, जीना इसी का नाम है। तो नौजवानों, बच्चों, कभी मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता था 40 ईयर्स पहले, और फिर 12 ईयर्स रिटायर्ड, और मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, यंगिस्तान जिंदाबाद, यंगिस्तान जिंदाबाद। एंड एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। एज आई make these videos, I feel good, my students feel good, those who were associated with me 30-40 years ago. I'm 79. You are 79? Oh, good going. So yeah, that's great. As I said, age is just a number. You have to How feel. you feel it? Yeah, how you feel it, How yes. you keep yourself. Yeah. As you are keeping yourself so positive. Yeah. So good. I'm so happy to meet you. You were associated with some job? No, I was running an NGO. Now it is on hold. Achha, now it's okay, okay. 74 Doing painting. paintings and all. 79 not out. So if you count your age, you will not be. Very kind of you. Thank you very much. It's pleasure meeting you. And one thing is for sure, you deserve a pen, each one of you. Okay. Okay. Each one of you deserves a pen. Okay. My pleasure. नाम बोलो तुम्हारा? कीर्ति, This is? महेश्वरी, This is? Gautami. Zaksha. All from Canada? Yes, sir. Okay. Thank you. So Kannada Brala, but still I understand there is only one language, and that is language of humanity.
My blessing. 79 not out. You have to reach a long way, miss. And my blessings. It's a pleasure meeting you all. If you allow me to go in for a group. डेटा कनेक्शन बंद कर दो सबसे पहले। कल ये स्टेज पे चले गए डेटा कनेक्शन मैसेज कर रहा हूँ बंद करो तो ये डिलीवर अरे मेरे कई उस दिन नहीं उस दिन जो है अरे क्या नहीं उस दिन की है ये उस दिन वो उड़ाएंगे नहीं रहने भाई मैं घर का आदमी हूँ जफर साहब मैं जफर साहब घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होना मेरा वीडियो नहीं हमारी बड़ी अच्छी महफिल जमी हाँ उस दिन की हमारी महफिल बड़ी अच्छी जमी वो सुनाए आनंदिता सुनाए और दत्त साहब सुनाए और चलो जो भी हुई अच्छी अच्छा वो आशिक को अगर थिएटर करना है मैना जी खनक का है हमारी खनक बेटा कहाँ है अपने खनक ये आपके पीछे अरे यार चलो भाई खनक को भी ओ हो ये अरे भाभी सामने आना Yes, good. Last shot. अरे वाह वाह चलिए अनिल साहब और मेरे साथियों, इस वक्त हम जज्बात के तलातुम में हैं, भंवर में हैं और किनारों का दूर तक पता नहीं फिक्र भी किसे है। चलता रहा ये सिलसिला यूं ही। अभी आपने जावेद साहब का एक कलाम सुनाया, फिर कैफी साहब का सुनाया। एक बड़ा खूबसूरत शेर है जावेद साहब का, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी? जो खो गई वो थी तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असली हयात है। मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार गर मेरा साथ है। मेरी बात का मेरी हम सफर तू जवाब दे या ना दे, मगर तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हजार बातों की बात है। मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ, तेरे होठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ महके तो रात है, तेरा हाथ जो खो गई वो ये रोमांचक थी, ये मोहब्बत, ये रोमांस। लेकिन जगजीत जी तो
इस पर ध्यान रखते थे। नवाज देवबंदी उनके बड़े पसंदीदा शायर थे और 3 गज़लें उनकी उन्होंने गाई। जिस दिन मैंने उनकी गज़ल सुनी, तेरे आने की जब खबर महके, तो मैं उसका रोमांस महसूस कर रहा था। कभी कभी किस्मत मेहरबान होती है और एक दिन मेरे आशियाने पे नवाज देवबंदी साहब तशरीफ लाए। बहुत तवील गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे एक बात पूछने की कोशिश की और मैंने पूछा भी, नवाज साहब, जगजीत साहब आपके इतने करीबी, इतने दोस्त हो गए, कैसे? वो एक कहानी है छोटी सी। मैंने कहा क्या कहानी है? कहने कहानी ये है कि ये रसालों से गज़लें नज़में निकालते थे जगजीत जी, और एक दिन उनकी एक गज़ल नवाज साहब की उनके हाथ आ गई। उस गज़ल को जब उन्होंने पढ़ा जगजीत जी ने, उसके एक शेर ने खुद कहा जगजीत जी ने कि मुझे सोने नहीं दिया 7 दिन तक। और फिर उन्होंने नवाज साहब को फ़ोन किया। ये बात मुझे नवाज साहब ने खुद बताई और उन्हें फ़ोन करके कहने लगे, नवाज साहब ये गज़ल मुझे चाहिए, मैंने गानी है। नवाज साहब ने कहा कि ये गज़ल मैं दरअसल एक और सिंगर को दे चुका हूँ और वो इसको गाएंगे, इस वक्त तो मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये गज़ल गानी है। वो शेर क्या है? वो शेर था, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। 70 बरस बाद मुफलिसी इस हद की, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक और बच्चे सो गए। तो इस शेर पे जगजीत जी, मतलब संवेदनशीलता है। कितने सेंसिटिव इंसान थे जगजीत जी। यूँ बैठे हैं, अचानक में बारात में बैठा कोई कह रहा है बच्चे का ऑपरेशन होना है, 2 लाख रुपया जाना है, कैसे होगा ये होगा? कुछ नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं पता करो कहाँ है, कैसे है, और पहुँचा दो। जीना इसी का नाम है। तो वो गज़ल जो गाई जगजीत जी ने, तेरे आने की जब खबर महके, वो एक पूरा उन्होंने दौर अपने साथ ले दिया। क्योंकि नवाज साहब के गुरु बशीर बद्र साहब, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, ये बशीर साहब है। और फिर एक टहनी पे चांद उगा था, एक टहनी पे चांद उगा था, मैं ये समझा तुम बैठे हो, ये बशीर बद्र साहब हैं। और उन्हीं के शागिर्द नवाज साहब की गज़ल अब अनिल साहब सुनाएंगे, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने जब खबर महके, तेरे आने जब खबर महके, तेरे आने तेरे आने जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे। अब जब हम इसके आखिरी दौर में आ गए हैं ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत वक्त है कि इसमें हम इसका जो ग्रैंड फिनाले दें वो इस रूप में दें, क्योंकि ये दोनों ही कमाल के कलाकार हैं और इन दोनों के कलाकारों को मैं साथ में हरा तो वही कमाल के सारे। इसमें एक बड़ा खूबसूरत अंदाज ये है कि रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, तारा न जाने कहाँ छुप गया, दुनिया वही दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसा भैया, रमैया बसा भैया। और इसके बाद अगला कदम क्या है, आप हमारे दिल को चुरा कर आंख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो, इस महफिल में शम्मा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। इसका एक आगे भी हिस्सा है, गीत सुना के साज बजा के पल दो पल को दुनिया का दिल बहला दे, कोई काम कर गए हम तो ये जाने दुनिया में तेरे हम सफर, गीत हैं तेरे गीत ही तो जीवन, गीत हैं तेरे हो नग़्मे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा, तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन, गीत है तेरे, लारा ला 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 ला। कोई आउटस्टैंडिंग सिंगर्स है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा, मजा आ गया था। और हमारे जो बाकी सिंगर थे, वर्षना भी गाया और मुतनवा ने बहुत अच्छा गाया था, बाबू जी ने चलना, बहुत अच्छे गीत आप लोगों ने गाए और फिर कभी ऐसे ही जाएंगे, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम हैं वहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना। अच्छा, ये दिसंबर का महीना और गालिब को याद ना करें तो बात कैसे बनेगी। कल गालिब की सालगिरह थी 27 दिसंबर, और गालिब का शेर मुझे बड़ा पसंद है, मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ, तो एनी टाइम यू गो इन फॉर ए महफिल एंड वी विल बी देयर। थैंक यू, थैंक यू सर, आपने बहुत कमाल किया और खूब धमाल किया हम लोगों ने।
बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शाम रही। और दिन है 28 दिसंबर, बरस है 2024। जाते जाते बरस को विदा किया।